Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to do special equation part 2. So if you haven't watched part 1, so make sure you watch that session. And in the previous session, we have discussed these two equations, how to find the natural solution, positive integer solution, or total integer solution of these type of equations. And today we're going to discuss in this session x square minus y square equal to n form. We're going to see how to solve these equations, how to find the positive integer solution or natural number solution, how to find negative integer solution, or how to find the total integer solution of these type of equations. Okay, I'm going to tell you two methods. First going to be basic approach, basic method to solve this equation, and second gonna formula approach. Second, I will give you the just formulas. You can directly put the values in the formula and you will get the answer. Both these approaches are important. In the previous sometime directly question has come on this equation, so if you know the formula you can directly solve the question without wasting any time. But sometime if they make any changes here and there in the equation, then this method will be helpful. Okay, so both are important. Understood the proper method, basic approach, how to solve these type of questions, and remember the formula also if you want to excel in the examination. Otherwise, if you just learn the basic method, that is also suffice. But formula will give you edge. Suppose direct question come, and we have seen in the previous year exams that direct question has come. So if you have formula, you will have advantage. You will save your time. Otherwise, you can solve the question using the basic approach. And any changes there. So I will give you the formula for this equation. But suppose in the examination this equations come. So if you don't know the basic approach, you will not be able to solve. But in previous, again I'm repeating, we have seen directly questions has come. Okay, so now let's get started. So this is the first equation, x square minus y square equals to 60. So let's solve this equation first for positive integer solution. पहले natural numbers इसके solution निकालते हैं, then we'll see the negative and then we'll see the total. Positive negative का sum कर दो, we'll get the total solutions. Okay, with solutions that include 0 है ना, उनको भी include करके तुम्हें total मिल जाएगा. तो x square minus y square equal to 60, and you know the formula a square minus b square equals to a plus b, a minus b. So I can break this equation, x minus y, x plus y, ऐसे इसको लिख सकते हैं equal to 60, and 60 can be written as, अब if you remember in the numbers factors में मैंने तुम्हें बताया था, जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स लिखो, सपोज फॉर 24 you have to write the factors. So always write factors in this way: 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. I have told you to write the factors always in this manner. This way you will not miss any factor, and also they are in a particular order, है ना. तो देखो ये ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इन दोनों का लाइक इक्विडिस्टेंट पर है. तो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. दिस फॉर्म हमेशा ऐसे ही लिखने की कोशिश करो फैक्टर जब भी लिखो. तो 60 के फैक्टर हम इसी फॉर्म में लिखेंगे: 160, 230, 320, 415, 512, 610. 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है. अब अगर 10 करोगे तो इसी के रिवर्स आने लगेंगे, लाइक 10 6 आएगा, 12 5 आएगा. तो दीज आर द फैक्टर जस्ट. ओके, नाउ व्हाट विल डू, लेट्स से योर x माइनस y इक्वल्स टू 1, पहला सॉल्यूशन अगर देखें, and x plus y equals to 60. Now if you try to find the solution, you have two equation or two unknowns. We can solve two equation, two variables. So 2x equals to 61, x equal to 61 by 2. This is not an integer solution. We are looking for positive integer solution. We are looking for positive integer solution. So if you see, like if this is the equation, you will always get x minus y, x plus y, है ना. And how you'll find the solution? You'll add this equation and you'll always get here 2x. अगर equations तुम्हारी इसी form में है, always you'll get 2x here. It means you need at this point a number that is even number. यहाँ पर even number होगा तभी integer आएगा, otherwise integer नहीं आएगा, because you'll always get 2x here. And if you subtract this equation, you'll get the 2y. So it means addition of these or subtraction of these always must be an even number if you want to find the integer solution. तो अब ये सम इवन कैसे आएगा, ये डिफरेंस इवन कैसे आएगा? इफ
दिस इज अ इवन नंबर एंड दिस इज अ इवन नंबर। अगर ये और ये इवन होंगे तभी इनका सम इवन आएगा, या फिर दोनों ऑड हो। लाइक आई होप यू नो दिस थिंग, अगर इवन इवन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें एक इवन मिलेगा। अगर तुम ऑड ऑड को सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे यू विल गेट अ इवन नंबर। अगर तुम इवन और ऑड में कुछ करोगे यू विल गेट द ऑड नंबर। ऑड इवन करोगे यू विल गेट अ ऑड नंबर। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट दीज टू फैक्टर्स जो है तुम्हारे, ये दोनों या फिर इवन होने चाहिए या फिर ऑड होने चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द इंटीजर सॉल्यूशंस। Okay, this step is clear, this thing is clear. Like you need to have both the factors are even number, then only you'll get the even or odd, then only you'll get the integer solutions. So this will not be a solution. So like first is not solution, first will not provide you a integer solution. Second, दोनों देखो even है, both are even, so this will give you the solution. check कर लें अगर तो x minus y, x plus y, and if you add 2x इक्वल टू x इक्वल टू 16 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लाइक कितना 2y एंड दैट इज 28, y इक्वल्स टू 14, या फिर ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो 14 आ जाएगा। तो दिस इज प्रोवाइडिंग यू अ इंटीजर सॉल्यूशन। अगेन दिस विल नॉट गिव अ इंटीजर सॉल्यूशन, अगेन ऑड इवन, अगेन ऑड इवन, अगेन इवन इवन। सो दीज टू आर आवर इंटीजर सॉल्यूशंस, These two are integer solutions. अब मैं सारा इरेज करके फिर से लिखता हूँ इस चीज को। अब मैं सिर्फ ये दो सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 60, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, and 230 and 16. These were the solution. If you are looking for positive integer solution, if you are looking for positive integer solution, so these are only two solutions. Once like अगर इसको ऐसे करोगे so this will give you x equal to 16, y equals to 14. Second, x minus y equals to 6, x plus y equals to 10. So this will give you 2, 16, x equal to 8, y equals to 2. So these are the two positive integer solutions. So this equation have two positive integer solutions. Okay, now अब निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चेक करते हैं। लेट्स चेक द निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन में निकाल लिया, नाउ लेट्स चेक फॉर निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। वन थिंग इफ यू सी हियर, लाइक एक तो ये तरीका है, x इक्वल टू 16 है, y इक्वल्स टू 14 है, एंड अगर तुम ऐसे सोचो, अभी मैं फैक्टर से तुम्हें बताता हूँ, फैक्टर से भी करते हैं बट इसको भी साइड में थोड़ा रखते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस हैं। फैक्टर से चलो पहले देख लेते हैं, बिकॉज फैक्टर से ही कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखा है, आई कैन राइट, देखो इसको मैं किन किन तरीकों से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट -2, -30, -6, -10, ऐसे में लिख सकता हूँ। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ ना, तब भी इसका भी मल्टीपल 60 आएगा। आई कैन राइट लाइक 32, 10, 6, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। लाइक इसको मैं बोल रहा हूँ कि रिवर्स कर दूँ, तब भी तो ही रहेगा। और फिर अगेन मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, -10, -6। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये तुम्हारा x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है। सबका मल्टीप्लिकेशन देखो 60 आएगा, उस मैंने गलत नहीं किया, सबका मल्टीप्लिकेशन 60 आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन 60 आएगा। ओके, सो दिस वाज योर, ये तुम्हारा जो था, दिस वाज प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला पार्ट हम चेक करते हैं। इससे देखो क्या होगा, व्हेन यू पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x plus y equals to -30. Now if you add these two equations, you get 2x equals to -32, x equals to -16, x equal to -16 and y equals to also -14 आ जाएगा। So this is providing you the like negative solutions। तो यहाँ से कितने 2 नेगेटिव सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इससे भी ऐसे नेगेटिव आएगा। इसको देखो, अगर इसको अगर हम देखें तो लाइक x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब एक चीज देखो जरा, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं
तो उनका डिफरेंस 30 थोड़ी आएगा, उनका सम ऑलवेज ज्यादा आएगा डिफरेंस है, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है. सो दिस मीन्स दिस विल ऑल्सो गिव द नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस. ऐड करके देखो, दिस इज 32, x इक्वल्स टू 16. x पॉजिटिव आ गया, y का वैल्यू देखो कितना आएगा, y का वैल्यू -14 आएगा, y का वैल्यू -14. सो दिस इज नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन. सेम यहाँ पर देखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू -30. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड. x प्लस वाई इक्वल्स टू -2. सॉल्व करोगे तो -32, x इक्वल्स टू -16 आएगा. एंड देखो यहाँ पर ये आया था तुम्हारा y इक्वल्स टू -14 आया था, यहाँ पर तुम्हारा x इक्वल टू आएगा और y इक्वल्स टू 14 आएगा. तो अब नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6 हो गए तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन. पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारे 2 थे, नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन 6 हो गए. तो टोटल कितने हो गए, टोटल सॉल्यूशन तुम्हारे, टोटल इंटीजर सॉल्यूशन 8 हो गए. आई होप दिस इज क्लियर. अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें, अगर तुमने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकाल लिए देन देखो, अब ये आई होप ये समझ में आ गया कि लाइक ऐसे कैसे करोगे फैक्टराइज करके. अब हम अगर वापस बैक टू जाते हैं जहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड कर लिए थे, x इक्वल टू 16, y इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 6 एंड आई थिंक y इक्वल्स टू 2. नहीं ये नहीं, क्या आ रहा था लाइक सिस्टम नेट, x माइनस वाई तुम्हारा लाइक 6 और 10 लिया था ना, 8 और 2 आ रहा था, 8 और 2. तो ये सॉल्यूशन आगे देखो, अगर तुमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, अब तुम्हें ये पता है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. तो अगर यहाँ पर इसके दूसरे सॉल्यूशन देखते जाओ क्या होंगे, इसी के अलाउंड में लिखूंगा. अगर x को मैं -16 रख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को भी मैं माइनस कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. दिस इज योर सॉल्यूशन. बोलो ये सॉल्यूशन रहेगा. अगर मैं सिर्फ x को -16 करूं, y को पॉजिटिव रखूं, तब भी सेम सॉल्यूशन आएगा, तब भी सेम सॉल्यूशन आएगा. अगर मैं लाइक y को -14 कर दूं, इज इट आर नॉट? तो दीज आर द ऑल टाइप सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो तुम्हारे ये कितने टोटल 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे. पॉजिटिव कितने आए तुम्हारे इसमें, पॉजिटिव 2 आए और निगेटिव 6 आए, और टोटल तुम्हारे 8 इंटीजर सॉल्यूशंस आर देयर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आगे मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है. अब यहां से अगर तुम्हें देखो रिलेशन पता चल रहा होगा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारा s आ रहा है तो टोटल इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, 4s होंगे. ये तो बेसिक चीज है ना. टोटल अगर ये s है तो ये 4s हो जाएगा. बट एक और चीज पे डिपेंड करेगा, तो अभी आगे हम देखेंगे, इसीलिए फॉर्मूला केयरफुली. 60 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर नहीं तो ये चीज वर्क करेगी, अदरवाइज दूसरा होगा. तो वो अभी चेक करते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2046. सो 2046 2 से डिविजिबल है, डेट इज 1023 इंटू 2 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 3. वन मोर थिंग, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो अब जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जब तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन हो, चेक वन थिंग कि जो n हो तुम्हारा या फिर ऑड हो, ठीक है. अगर ऑड है तो उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल है. अगर इवन है तो दो कंडीशन होंगी, इवन है तो दो कंडीशन होगी. इवन है विथ ओनली 2, सिंगल 2 है, उसके फैक्टर में सिर्फ एक 2 है, मोर देन 1 2. अगर सिर्फ एक 2 है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल. यहां पर सॉल्यूशंस होंगे. अगेन ध्यान से समझो, अगर n की वैल्यू लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n की वैल्यू जो तुम्हारी है, दिस इज अ ऑड नंबर, देन दिस इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन. बट इफ दिस इक्वेशन इज अ इवन नंबर, ऐसा क्वेश्चन कैट में आया है, ठीक है, बड़ा सा नंबर लिखा हुआ था, देन मैनी पीपल ट्राई टू ब्रेक डैट, फैक्टर वैक्टर करने की कोशिश कर रहे थे, बट लाइक फिर उन्होंने लेटर रिकॉग्नाइज किया कि इसका 2 है या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग. अगर इवन है देन यू हैव टू चेक कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सिंगल 2 है इसमें,
अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों नो सॉल्यूशन है। अगर सिंगल 2 है देन नो सॉल्यूशन, अगर मोर देन 2 है ना, लाइक अगर यहाँ पर 4 होता देन दिस विल हैव सॉल्यूशन। चलो अब चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2046 एंड 2046 कैन बी रिटन एज 1023 इंटू 2। सो दिस इज अ ऑड नंबर, है ना। अब इसके सारे फैक्टर तुम्हारे लाइक ऑड ही आएंगे एंड दिस इज अ इवन नंबर, ओनली सिंगल 2 है इसमें। तो अभी हमने कंडीशन चेक की थी, यहां पर जो आएगा और यहां पर जो आएगा ए और बी सपोज, तो ये दोनों या फिर इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए, या फिर इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। बट अगर ये 2 आ जाएगा तो अब इसको फैक्टराइज करोगे या फिर 2 इस साइड होगा। अगर 2 इस साइड होगा तो इस साइड तुम्हारा क्या हो गया, इवन हो गया, बाकी बचे इस साइड ऑड आ जाएंगे। अगर 2 तुम्हारा इस साइड हुआ तो इस साइड, मतलब समझ रहे हो, एक साइड पे जिधर 2 होगा वो इवन हो जाएगा, दूसरा साइड तुम्हारा ऑड हो जाएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ पेयर हेयर that has even plus even or odd plus odd. So that's why this type of question will not have any solution. So this have no solution. This have no integer solutions. Okay, remember this thing very carefully. अगर single 2 होगा then it's not possible to make this type of pair even odd odd. So that's why there will be no integer solutions. Now let's see x square minus y square equals to 36, and suppose we have to find the positive integer solution, negative integer solution and total integer solution. So if you see first example that I have taken, that was a 60. Second example I have taken, that was 2046 n ka value. So this was a not perfect with single 2, and this is a perfect square number. एंड इफ यू चेक 60 में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि लाइक पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन में निकाले थे और नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकाले थे, दोनों को ऐड कर दिया था, आ गया था टोटल इंटीजर सॉल्यूशन। बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, लाइक दिस इज ट्रू फॉर अ सॉल्यूशन व्हेन n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब ये वैलिड करेगा, बट n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कैसे क्या चीज होगी इसमें। x square minus y square equals to 36. Suppose let's try to figure out what are the positive integer solution. So अगर positive integer solution में निकालने हैं then x minus y, x plus y, and let's write 36, है ना, 36 को ऐसे 3, 12, 4, 9 and 6, 6. So these are the ways. Now if you check this is not solution, है ना, because we need to meet this sum as a even, a difference as a even, so this is not coming. This is solution. Again even odd, not solution. Again even odd, not solution. Again even, this is a solution. So these two values will provide you an integer solution. 2, 18, 6, 6. This will provide you an integer solution, but we have to find positive integer solution. तो पहले चेक करते हैं, x minus y equals to 2, x plus y equals to 18, एंड x का सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा 10, y का सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है। बट अब अगर 6 को लेके तुम करते हो, यू विल नॉट गेट द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। 6 को लेके करोगे तो x का वैल्यू 6 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो दैट्स वाई एक्चुअल इक्वेशन जो वो वाली तुम्हारी होगी जो मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन विल बी like solution with zeros, positive integer solution plus negative integer solution equal to total integer solution. तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, देन इसकी वैल्यू होती है 0, देन जीरो सॉल्यूशन विल बी द सॉल्यूशंस दैट हैव 0 विल बी 0। तो इसके लिए इक्वेशन होल्ड कर जाती है। बट जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये वाले सॉल्यूशन ऑलवेज तुम्हारे 2 ही होते हैं, दीज आर सॉल्यूशन दैट विल बी ऑलवेज 2। ठीक है, तो आगे भी फॉर्मूला में यू विल गेट द आइडिया, कैसे फॉर्मूला कैसे बना है वो तुम अंडरस्टूड कर पाओगे, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड। अच्छा चलो अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। एनीवे तो पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने निकाले हमने, एक ही आ रहा है, ये 218 वाला, दैट्स द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन 2। नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालोगे देन अगेन दैट विल बी लाइक 218 को डिफरेंट फॉर्म में लिखोगे, है ना। इससे तो आने वाला नहीं, इससे तो तुम्हें 0 ही मिलेगा, इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट। सो लेट मी जस्ट राइट, देखो फैक्टर वाला छोड़ते हैं, फैक्टर वाला आई होप तुम कर लोगे, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था यहाँ पर ऐसे तुम लिख के कर लोगे
मैंने फैक्टर करके एक्सप्लेन कराया था ना यहाँ पर। 60 का मैंने फैक्टर लिख के सारे 218 फिर -218 18 2, तो वो कर लोगे। तो लेट मी जस्ट गिव यू आइडिया। मैंने बता लाइक ये 218 आ रहा है और तुम्हारा 66 आ रहा है, बट 66 से तो जीरो वाले सॉल्यूशन मिलेंगे। 66 की बाद में बात करते हैं, वो मैं भी तुम्हें 66 में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि दो ही सॉल्यूशन क्यों होते हैं जीरो वाले, ठीक है। अभी फोकस करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर पे। तो पॉजिटिव इंटीजर इससे आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। एंड आई कैन राइट दिस ऑल्सो, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आई कैन राइट 18 2 भी लिख सकते हैं, तब भी 36 आएगा। और फिर इसको मैं 18 - 2 भी लिख सकता हूँ, -18 - 2। तो लाइक अगर इसको 218 है तो बेसिकली 36 को लिखने के 4 तरीके हैं। 36 को लिखने के 4 तरीके हैं। इन 4 में से ये तरीका तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन देगा, जैसा मैं 60 में तुम्हें दिखाया था। दिस विल गिव द पॉजिटिव इंटीजर। ये तुम्हें निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा। तो देख लेना। तो निगेटिव कितने हो गए? 1 2 3, 3 निगेटिव हो गए। 3 सॉल्यूशन आर निगेटिव, है ना। 3 निगेटिव होंगे। अब पॉजिटिव देख लो, 3 तुम्हारे ये निगेटिव हो गए, 3 निगेटिव हो गए। और पॉजिटिव तुम्हारा 1 आ रहा था ना, पॉजिटिव 1 आ रहा था। सिर्फ 2 और 18 ये पॉजिटिव है, 6 पे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो पॉजिटिव तुम्हारा 1 आ गया, निगेटिव 3 आ गया। अभी भी टोटल नहीं निकला है। अब इसमें जीरो वाले निकालते हैं, जीरो वाले सॉल्यूशन देखते हैं कितने हैं। तो जीरो वाले सॉल्यूशंस के लिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 6, 6 और 6। अब 6 और 6 में देखो क्या हो सकता है। 6 और 6 को तुम लिख सकते हो -6 -6। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ना। ऐसे 4 वेज नहीं आएंगे, इनके सिर्फ 2 ही वेज आएंगे, सिर्फ 2 वेज आएंगे। अब 2 में से अगर तुम ये देखो x - y, x + y, 6 और 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। अगर इसे -6 कर दो, x - y -6, x + y -6, तो यहाँ पर x की वैल्यू -6 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए, एक 6,0, एक -6,0 विद जीरो, जीरो के इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो ये 2 हो गए। अब टोटल ऐड करोगे तो दीज आर द 6 सॉल्यूशन। सो टोटल तुम्हारे 6 सॉल्यूशन है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तुम्हें ये समझ में आया कि जीरो के सॉल्यूशन 2 क्यों होते हैं। लाइक देखो, एक तो सॉल्यूशन है तुम्हारा 6,0, देन दूसरा सॉल्यूशन होगा तुम्हारा -6,0, है ना। 0,6 तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि -36 हो जाएगा ये। सो दैट्स वाई ये हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं जब भी होते हैं। और ये सॉल्यूशन कब होंगे? जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क। लेट मी नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर इसका 8 है। लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद स्लाइड नंबर। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, 2 तरीके से बनेंगे। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर में भी केस होंगे, एक तो इवन होगा, एक तो ऑड होगा। n का वैल्यू लाइक 36 होगा, n का वैल्यू भी लाइक 81 होगा या 9 होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर है और इवन है और ऑड है। तो अगर इवन है तो दिस इज द फॉर्मूला। तो 36 का अगर हम वेरीफाई करें तो 36/4 दैट इज 9, है ना। 9 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9 इज 3। तो 3 - 1/2, 1 आ रहा है। 1 ही सॉल्यूशन हमने निकाला। पीछे हमने कितना सॉल्यूशन फाइंड किया था 36 का? 1 फाइंड किया था। ओके, तो 1 आ गया। टोटल सॉल्यूशन कितना आया था? हमारा आंसर 6 आया था। तो s की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो दैट इज 4s + 2 दैट इज 6। नेगेटिव कितने आए थे? तो ये चाहो तो ऐड कर लो, ये लाइन और एक और लाइक ये कॉलम ऐड कर लो नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस के लिए। नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे? ये तो ऑलवेज तुम्हारा 2 रहेगा। ये 2 कहाँ से आ रहा है? जो तुम्हारे जीरो वाले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग जीरोस, ये वो वाले सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस 2 को हटा दो, 4s - s कर दो दैट इज 3s। नेगेटिव सॉल्यूशन तुम्हारे 3s होंगे और इसमें भी तुम्हारे 3s होंगे। तो अगर ये चाहो तो ये एक और कॉलम ऐड कर लो, 3s और 3s, ठीक है। इवन का आ गया। इवन के ये सॉल्यूशन नेगेटिव कितने आ रहे थे? नेगेटिव वाले भी 3 आ रहे थे।
नेगेटिव वाले देखो 3 आ रहे थे, ठीक है, दिस इज डन। ऑड का देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं ऑड का, 9 वाला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 9 है तो इसके सॉल्यूशंस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 1933। तो अगर इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन देखो तो ये आ गया, दोनों देखो ऑड है तो इवन बन जाएगा, तो दिस इज द सॉल्यूशन जहां पर एक्स की वैल्यू तुम्हारे 5 होगी, 91 प्लस वाई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। अगर नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात करूं तो लाइक -5 -4 होगा, एंड -5 4 होगा, और तुम्हारा क्या होगा 5 -4 होगा, ये तुम्हारे निगेटिव आ गए। जीरो वाली की बात करो अगर, तो जीरो वाले तुम्हारे एक आ जाएगा 3,0, एक आ जाएगा -3,0। आई होप दिस इज क्लियर। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारा 1 आ रहा है, फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। अगर 9 है तो 9 की वैल्यू पुट करोगे, भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 2 आएगा, 2 -1/2 1 आ गया, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन 3 आ रहा है, 3s 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 3s आ जाएगा, और ये तुम्हारे 6 आ रहे हैं, टोटल तुम्हारा 6 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। इवन के लिए क्या करोगे, उसमें से पहले 4 हटाओगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे -1/2, और ये फॉर्मूलाज आगे हमें काम आने वाले हैं तुम्हारे ज्योमेट्री में। दीज फॉर्मूलाज विल अगेन यू विल सी इन ज्योमेट्री, ये वाले फॉर्मूलाज तुम्हें आगे फिर ज्योमेट्री में दिखेंगे। तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, व्हेन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, तुम्हें एक कुछ साइड वगैरह दिया होगा, देन आई विल एक्सप्लेन द डिटेल, बट अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फॉर्मूलाज आगे तुम्हें फिर दिखेंगे व्हेन विल बी डूइंग इन द ज्योमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जब नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड करने होंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगेन यू हैव टू रिमेंबर बोथ द अप्रोचेस, बेसिक मेथड भी याद रखो और फॉर्मूलाज भी याद रखो, इफ यू वांट टू लाइक डू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। अगर सिर्फ एवरेज मार्क्स लाने देन यू कैन जस्ट डू वन थिंग, ठीक है। n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा केस, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लाइक 60 वाला जो हमने केस देखा था, 60 वाला केस देखा था, तो क्या करोगे, लाइक 60 सपोज हमें फाइंड करना है, 60 में पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन आई थिंक 2 आया था, इफ आई रिमेंबर इट राइट, 2 आया था, तो 60/4 पहले करोगे 15 आएगा, 15 के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करोगे, डेट इज 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 4 डेट इज 2 ही आ रहा था। यहां पर अगर चाहो तो ये लिख लो नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, एक और कॉलम ऐड कर लो नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। यहां पर बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जीरो वाले सॉल्यूशन तुम्हारे जीरो होंगे, तो यहां पर डायरेक्टली 4s - s कर दो, डेट इज 3s, तो 4s - s डेट इज 3s। तो ये तुम्हारा तो हर जगह 3s ही आ रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालो, उसका 3s कर दो, डेट इज योर नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो इसको सिंपल 3s ही याद रखना, बट पहले पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना होगा, देन उसका 3 टाइम्स करोगे, डेट इज योर नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर नॉर्मल लाइक एक ऑड नंबर है, लेट्स टेक एनी ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर तुम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा था ना उसमें पॉजिटिव टोटल इंटीजर तुम्हारा 4s आ रहा था, हमने टोटल इंटीजर चेक किए थे, डेट वाज कमिंग 4s, और जब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द नेगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज जीरोस वाले सॉल्यूशन तुम्हारे जीरो हैं इसमें। ऑड कोई नंबर है, अगर ऑड कोई नंबर है, लेट्स से 21, so let's try to solve it first also। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 121 37, और कुछ है यहाँ पर इसके अलावा, 121 37, इसके अलावा नहीं होंगे, है ना, यही सॉल्यूशन है। तो दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, ये दो तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, दो तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, उसके बाद तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, है ना, उसके बाद तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो देखते हैं ये हमारे दो सही है। 27 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 2, सो दैट्स व्हाई दिस इज राइट। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये लाइक या देखने में लग रहा होगा तुम्हें लाइक 6 कितने 12 फॉर्मूलाज देखने में लग रहा है, बट इफ यू रिमेंबर इट प्रॉपरली इट्स हार्डली अ फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले सिमिलर ही, तो थोड़े चेंजेस के साथ है। अब तुम्हें पता है जब भी परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा यू हैव टू डिवाइड बाय 4, बीट इन लाइक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इवन दिखेगा तुम्हें तो उसे 4 से डिवाइड करना ही होगा, 4 से डिवाइड करना ही होगा। रीजन तुम्हें समझ में आना चाहिए, लाइक कि अगर सिंगल 2 है तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो तुम रिलेट करना, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर। अब तो सारे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होगा, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर।
इफ आई रिमेंबर दिस इज लाइक, ये आई थिंक 81 का स्क्वायर है ना, ये 81 का स्क्वायर है, हाँ 81 का स्क्वायर है। तो दिस अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज अ ऑड परफेक्ट स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऑड परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो एंड -1/2, यही फॉर्मूला होता है देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स एन -1/2। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दैट इज 81 का स्क्वायर है एंड दैट इज 3 का पावर 8 है, 3 का पावर 8 है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 है, 9 - 1/2 दैट इज 4। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारे 4 आ गए और टोटल इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारे 18 आ गए और ये 12 आ गया नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर, जस्ट फॉर्मूला यूज करके। अब देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में सपोज तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देन व्हाट यू विल डू। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला हियर। फॉर्मूला किस चीज के लिए था, फॉर्मूला वाज फॉर योर, जब इनके कोफिशिएंट्स 1 हो एक्स और वाई के, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो पहली बात तो इसके एक भी इंटीजर आएंगे नहीं, ठीक है, ये मैं इसको करेक्ट करता हूँ, इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करेक्ट कर लो, ये मैं मैंने स्क्वायर गलत लगाया, ये ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज 2x² - y² = 36, या फिर दिस इज 4x² - y², ये करेक्शन मैंने किया, ठीक है, दिस इज। अब इसमें देखो, अगर तुम इस फॉर्मूला यू कैन नॉट अप्लाई है ना, ऐसे 36 डायरेक्ट करके फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज वहां पर कोफिशिएंट 1 था, वो जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए दैट वाज ऑफ दिस फॉर्म, दैट वाज ऑफ दिस फॉर्म वेयर ए बी का वैल्यू तुम्हारा 1 है, ax² - by² = n, वेयर a एंड b की वैल्यू तुम्हारा 1 है, बट यहाँ पर देयर इज 4, सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला हियर। मे बी समटाइम तुम्हारा आंसर सेम आ जाए फॉर्मूला से, बट इट विल नॉट वर्क ऑलवेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें मैनुअली ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे अराउंड, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी शॉर्टकट तुम्हें बता दिए जाए, बट दैट विल नॉट वर्क, वो बहुत सारे तुम्हें और फॉर्मूला से याद करने पड़ेंगे, सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग दैट थिंग, है ना। जिस जो बहुत एक रेंज को कवर कर उसके लिए ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनाना दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अब इसको कैसे करोगे, इसको अपना बेसिक अप्रोच से हैंडल करते हैं। तो सपोज पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना है और नेगेटिव वगैरह तुम खुद सॉल्व कर लोगे, मैं पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन इसके बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 136 एंड 218 एंड दिस इज 218 एंड 312 49, ठीक है। सो 2x - y, अब तुम्हें पता है 2x ऐड करूंगा तो मैं 4 आने वाला है ना? ये क्योंकि स्क्वायर के अंदर होना है तो कुछ, अब पहली बात अगर ये स्क्वायर के बाहर होगा, अगर ऐसे देखो तो मैंने दिखाया था शायद, है ना, अगर ऐसे देखो तो ऐसे तो कभी इंटीजर आना ही नहीं है, क्योंकि दिस इज √2 x - y, √2x+, इसका तो कभी इंटीजर आना ही नहीं है ना, इसका तो कभी इंटीजर आना ही नहीं है। इस टाइप के नंबर्स का इंटीजर आ सकता है, तो वो देखो कैसे करेंगे। अब 2x - y, ये दोनों ऐड होके इवन आएगा, तो मतलब यहां पर सेम कंडीशन फॉलो होगी, इवन ही होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, अगेन वी डोंट नो, हो सकता है, वी हैव टू चेक। यहां जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा, यू विल हैव ऑलवेज वैल्यूज दैट यू कैन डील। तो ये भी नहीं है, अच्छा 6 है, 6 2x - y 6, 2x + y 6, तो आई थिंक ये पॉजिटिव तो नहीं देने वाला है ना, दिस विल नॉट गिव अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये 0 वाला सॉल्यूशन देगा, दिस विल गिव यू द सॉल्यूशन दैट आर इन्वॉल्विंग 0। चाहे चेक कर लो, 4x 12, x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर पे फोकस करना है, तो सिर्फ यही इक्वेशन बचती है। अब देखते हैं ये दे पाएगी हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन या नहीं, दैट इज 20, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो देगी बट इंटीजर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, सो दिस इज प्रोवाइडिंग अस इंटीजर, x = 5 आ रहे एंड अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y आई थिंक तुम्हारा 8 आ जाएगा, है ना, y 8 आ जाएगा, 5 और 8 ये प्लस है तुम्हारा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, तो इसका एक इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा है। अगेन अगर फॉर्मूला से भी करोगे आई थिंक यू विल गेट द वन सॉल्यूशन, बट दैट मे और मे नॉट वर्क, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच दैट यू हैव टू यूज व्हेन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम
या फिर कोई और कंडीशन लगा रखी है, देन तुम्हें बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द अप्रोचेस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब सारे क्वेश्चन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, चलो करते। ए स्क्वायर 987, 987 3 से डिविजिबल है ना, लाइक अब कितना भी बड़ा नंबर हो, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो यू एनी बिगर नंबर यू कैन सॉल्व। हमें फाइंड करना है इंटीजर सॉल्यूशन, टोटल इंटीजर सॉल्यूशन बेसिकली फाइंड करना है। एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 से करते हैं इसको, 3 2 3 9, 7 से 7 4 नहीं, 7 से नहीं है, 7 4 28 28 है ना, 49 ना, नहीं 47, सॉरी 47, 7 7 47। सो दिस इज द ब्रेकअप है ना, दिस इज द लाइक फ्रैक्शन। सो ये देखो पूरा ऑड है, पहली तो बात पूरा ऑड है, एंड स्क्वायर नहीं है, तो नॉट स्क्वायर में ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। नॉट स्क्वायर में ऑड वाला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके लिखो डिवाइडेड बाय 2 करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, तो इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। बिकॉज ऐसे लिख के तो पॉसिबल नहीं है सारे फाइंड करना है ना, तो हमें फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा बिगर नंबर्स के लिए। सो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 4। अब ये तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है। टोटल इंटीजर सॉल्यूशन क्या होते हैं, 4s होते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, बिकॉज जीरो वाले तो इसमें होंगे नहीं। सो दैट इज 4s, दैट इज 16। तो इसके टोटल सॉल्यूशन कितने, 16 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली चलो ये दोनों तुम्हारे होमवर्क हैं। लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर के साथ मुझे इनके आंसर्स बताना। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि यार लाइक नॉर्मल बेसिक मेथड क्या है इस क्वेश्चन सॉल्व करने को, बेसिक मेथड, नॉर्मल अप्रोच। एंड यू ऑल्सो फाइंड आउट कि नंबर्स अगर बहुत बड़े हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन है, और एन की वैल्यू काफी बड़ी है, लेट से कुछ भी ऐसी वैल्यू दी हो, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू डू मैनुअली। ऐसे लिखकर सारे पॉसिबल नहीं है। सो अगर बिगर वैल्यूज आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो फॉर दैट यू ऑल्सो नीड द फॉर्मूला। अब तुम्हें अप्रोच तो पता होगा, बट एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो दैट्स वाई यू नीड टू नो द फॉर्मूला। सेकेंड, अगर कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन, देन एक्सपेक्ट करोगे कि एन की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होगी, या फिर कुछ इसमें ट्रिक होगा, सो दैट यू कैन लाइक तुम्हें सारे केसेस बहुत सारे नहीं लिखने पड़ेंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू मैनुअली। I hope this thing is clear, and you will remember the formula also, and you will remember the approach also, because both has their uses. अगर बड़ा नंबर और ऐसे आता है, then you can directly use the formula and you can solve the question. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, then तुम्हें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो दोनों अप्रोच का अपना इंपॉर्टेंस है। तो इफ यू वांट टू गेट अ ग्रेट परसेंटाइल, है ना, बहुत तुम्हें हाई परसेंटाइल लाना है, लाइक 99.5 प्लस, देन यू नीड टू नो ऑल द थिंग्स। अगर सिंपल 90 95 टारगेट है तुम्हारा, देन इट्स नॉट एन इशू, ठीक है, देन तुम एक अप्रोच से काम चला सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दोगे। ओके, बिकॉज अगर हाई परसेंटाइल है, देन यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चंस, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप यू गाइज हैव लाइक द सेशन, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ग्रुप, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स। You can join the Facebook group also. So that's it for today. Let's see you in the next session.